کرے اسے پورا قسم تو مل جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو غربت کی اتنی چکی میں پیسے جا رہے تھے، لیکن باوجود ایمان کا وہ پہاڑ تھے کہ دنیا ان کے نام میں کل بھی لرزتی تھی اور آج بھی لرزتی ہوئی نظر آتی۔ غربت کسی چیز میں رکاوٹ نہیں تھی۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو دیکھی، اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک غریب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر گھر سے رخصت کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کروں، خدا کی قسم دنیا میں آج ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا جو نبی کی سنت کے مطابق اپنی بیٹی کو ودا نہ کر سکتا۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی لخت جگر خاتون جنت، کون رسول اعظم مالک قومین، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جنت ان کی، جنت کی نعمتیں ان کی۔ وہ اگر چاہیں تو اپنی بیٹی کے لیے حور کو زمین پر خدمت کے لیے اتار کر پیش کر سکتے ہیں، لیکن بیٹی آتی ہے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے، سرکار گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، یہ دیکھیں نا میرے ہاتھ، کوئی کنیز مجھے دے دیں تاکہ میرا ہاتھ بٹائے اور خدمت میں میرا ساتھ دے۔ قربان چاہیے میرے آقا کو اپنا غریب امتی یاد آ گیا کہ کل میرا غریب امتی اگر اس کی بیٹی بھی اس کے پاس آئے گی اور آ کر کے کہے گی ابا جان مجھے کوئی کام والی دے دیجئے، میں گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، اگر آج میں نے میری بیٹی کو کنیز دے دی تو میرے امتی کو بھی اپنی بیٹی کو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام والی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر میرے امتی کے پاس یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو کیوں نہ میری بیٹی کو میں ایسی چیز دے دوں کہ میرا غریب امتی بھی اپنی بیٹی کو دے سکتا ہو۔ فوراً خاتون جنت سے فرمایا بیٹی اگر تم کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو نا تو سنو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، تمہیں تھکان نہیں لگے گی۔ آپ مجھے بتائیے ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہے تو یہ دے کر رسول اعظم کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ ہم کیوں حضور کی زندگی کو بھول گئے؟ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو کیوں پسے پوچھتا کے ڈال دیا اور ہم نے اپنی زندگی کو تعیشات کے اندر کیسے گرفتار کر دیا؟ بدلو اپنی سوچ کو۔ میں آپ سے کافی امیدیں وابستہ رکھتا ہوں، مجھے کافی توقعات آپ سے ہیں، اور اب تو الحمدللہ یہاں پر ایک ایسا ادارہ بھی قائم ہو چکا ہے جس ادارے کے اندر تعلیمی معیار اتنا بلند ہے کہ مستقبل بڑا خوابناک نظر آتا ہے۔ مولانا اظہر صاحب جو ہے ماشاءاللہ جو ہمارے دین محمد بھائی کے بھتیجے ہیں، جو ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے، تعلیمی معیار بہت اسٹرانگ ہے۔ اللہ عز و جل انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ان کے مستقبل کو تابناک بنائے۔ بچوں پڑھو، چھوڑ دو گناہ سے اپنے تعلق کو، چھوڑ دو گناہ سے رشتے کو، چھوڑ دو اپنے آپ کی زندگی کو بربادی کے راستے پر لے جانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ایک 6 سال کا ننھا سا بچہ اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ چولہا جلا رہی ہے تو ماں کو یہ کام کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتا ہے، گریہ و زاری میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، بلک بلک کر کے وہ رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا غلطی ہوگی کہ تو رو رہا ہے؟ تیری عمر تو ابھی بہت چھوٹی ہے، 6 سال کا بچہ تو اتنا رو رہا ہے۔
माँ आज मैंने तुझे देखा कि चूल्हा जलाने के लिए बड़ी लकड़ियों को तूने पहले आग में नहीं डाला, पहले तूने छोटी छोटी लकड़ियों को डाला। अगर कयामत में अल्लाह जहन्नम की आग को जलाने के लिए अगर मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले डालेगा तो क्या होगा। इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये छोटे से बच्चे, ये नन्हे से बच्चे, अभी कल ही मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात बताई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, 6 साल की उम्र। माँ को किसी ने बताया कि फलां मदरसे में मौलाना बहुत अच्छे बुजुर्ग सिफत हैं, अपने बच्चे को वहां दाखिला दिला दो, तुम्हारा बच्चा कुछ बन जाएगा। माँ हाथ पकड़ती है, बच्चे को लेकर जाती है। बुजुर्ग अर्ज करती कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है और मैं इसे लेकर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आपका बड़ा नाम मैंने सुना है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वली बन जाए। क्या तमन्ना थी माँ की। आज की माँ अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहती, वो माँ कितनी अजमत वाली जो अपने बच्चे को वली बनाना चाहती। माँ ने ये कहा और कहा मेरे बेटे को घर मत भेजिएगा हुजूर, घर आएगा तो इसका घर में दिल लग जाएगा, तालीम का नुकसान होगा, इसे हुजूर आपके पास रखिए। बच्चा रहने लगा। बायज़ीद बुस्तामी 6 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, रुक गए। वक्त गुजरता गया, माँ की याद तड़पाने लगी। नन्हे से बच्चे की उम्र होती, नन्हे से बच्चे को माँ की याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी। रात के सन्नाटे में रो रो कर अपनी रात गुजारने वाला ये बच्चा 6 महीने का अरसा गुजर जाता है। परेशान होता है कि 6 महीने हो गए मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। रोते हुए अपने उस्ताद के पास बायज़ीद पहुंचते और अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुझे एक दिन की सिर्फ इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, एक रात माँ के साथ गुजार कर मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे एक दिन की इजाजत दीजिए। आंखों में आंसू देकर उस्ताद का दिल मोम हो गया। इरशाद फरमाया, जाओ बेटे मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन एक दिन से ज्यादा मत रुकना। बच्चे ने कहा ठीक है। बायज़ीद घर पर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ माँ करके आवाज दे रहे हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पहली बार आवाज दी, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जरा बुलंद आवाज से कहा, माँ। अंदर से आवाज आई, कौन? बायज़ीद ने कहा कि तुम्हारा बेटा बायज़ीद। इतना सुनना था कि माँ ने अंदर से कहा, मेरा बायज़ीद अभी नहीं आ सकता, मेरा बायज़ीद उस वक्त आएगा जब वो वली बन जाएगा। जब माँ ने ये कहा और दरवाजा नहीं खोला, बायज़ीद रोते हुए वापस मदरसे चले गए। 16 साल तक अपनी माँ के पास नहीं आए और उन्होंने मदरसे में इल्म हासिल किया। 16 साल के बाद एक रात हजरत बायज़ीद बुस्तामी के उस्ताद गिरामी को अल्लाह अकबर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारे पास ये नौजवान जो पढ़ रहा है ना बायज़ीद, मुबारकबाद उसे पेश करो, हमने उसे विलायत कुबरा का ताज अता कर दिया। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने बच्चे को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया तुम मुकम्मल हो चुके, अब तुम जा सकते हो। पलट कर घर पे गए। 16 साल के बाद माँ के पास जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। पहली बार दरवाजे पे दस्तक देती ही माँ ने अंदर से पूछा, कौन? कहा तेरा बायज़ीद। दरवाजा खोला, बेटे को देखा, मूछें निकल आई थी, जवान साल करा था। माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटे मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मंजिल पा ली और जिस मकाम पर मैं तुझे देखना चाहती थी उस मकाम पर तुम पहुंच गए। उसके बाद माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी तूने एक तमन्ना तो पूरी फरमा दी कि मेरे बेटे को तूने विलायत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमा दिया। बस अब मेरी कोई और तमन्ना नहीं, बस एक ही तमन्ना है, तेरी बारगाह में ईमान के साथ आ जाऊं। ये कहते ही रूह परवास कर जाती है और उनकी माँ इस दुनिया से कुछ कर जाती। वो माएँ थी जिनको अपने बच्चे की तरबियत की इतनी फिक्र थी। नादानों, तुम्हारा बच्चा कलियों के अंदर गुल्ली डंडे खेल रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। नंगा नाच कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। डांस कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। तुम कब अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होगे? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरिया को, एक अच्छा इंसान बनाओ।
एक अच्छा मुसलमान बनाओ, खुद भी परफेक्ट बनो, अपनी औलाद को भी परफेक्ट बनाओ। और दो चीजें अगर तुमने इख्तियार कर ली तो अल्लाह मखलूक के अंदर तुमको मुमताज पोजीशन अता फरमा देगा। और वो दो चीजें ये हैं, ईमान और अमल सालेह। अमल सालेह से मुराद इबादत, मुआमलात और अखलाक। इबादत में भी तुम पंक्चुअल, मामलात के अंदर भी तुम पंक्चुअल हो जाओ, और इसी के साथ तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हों। एक चीज नहीं कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, जैसा कि आज होता है कि बहुत सारे नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े और रात को जाकर के गाने देख रहे हैं, गजलें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। आजकल क्या है, आजकल क्या है, कोई जिंदगी में फर्क नजर नहीं आता। तो ऐसा नहीं, एक जमाना भी था ना, आपको याद होगा या मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें याद होगा कि अगर किसी मोहल्ले का कोई शख्स हज करके आ जाता और मोहल्ले में कभी झगड़ा होता था ना, तो लोग कहते थे हाजी साहब जो कहते हैं ना वो फैसला, जो हाजी साहब कहते। और आज हज के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, टूर वाला गायब हो रहा। जरा देखो क्या हो रहा है, कहां चले गए। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही थे तो हमारे हालात भी सही थे। हमें संभलने की जरूरत है, हमें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनने की जरूरत है, हमें गुनाहों से रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज एक वादा करके उठो, एक इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं करो, एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा मत करो। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, मैं आपको बताऊं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा कहा कि हजरत बचपने से मेरे माँ बाप ने मुझे नमाज का आदी बनाया है, लेकिन मैंने आज से कुछ दिनों पहले जो फज्र की नमाज पढ़ी ना, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। मैंने कहा यार ऐसी क्या खुशूसियत है, मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में देखा कि तुलुए आफ्ताब के अंदर 7 या 8 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा यार मैं अभी उठूंगा, इस्तिंजा करूंगा, वुजू करूंगा, इतने में तो वक्त चला जाएगा, चलो यार सो जाता हूँ, नींद कहाँ खराब करता हूँ, और नमाज यूं भी कज़ा होने वाली है तो नींद अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन एक ख्याल ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर किया, और वो ख्याल ये था, अचानक मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। मेरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस मेरे दिल ने कहा अगर मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा ना तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं जल्दी से उठा, जल्दी जल्दी मैंने वुजू किया और 2 फर्ज ही मैंने अदा कर ली ताकि मेरी नमाज कज़ा न होने पाए। यकीन जाने उस नमाज की लज्जत में आज तक नहीं भूल सका, जिस नमाज के बारे में मेरे ज़हन में ये तसव्वुर आया कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आप मुझे बताओ, नमाज कज़ा करते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे हो। अगर तुम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे ना तो हुजूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुकून से भर दिया करेंगे। कितने ताज्जुब की बात है, जो रसूल पूरी पूरी रात अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आज उसी रसूल के उम्मती पूरी पूरी रात गंदी पिक्चर देखने में लगा। क्या करते हैं? सुन्नी दावत इस्लामी का इस्तेमाल तफरीह के लिए नहीं होता,